ओके, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.1 एक्सरसाइज मैथ स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 1.1 which is about mattress. Okay, so first actually you need to know what is a mattress. तो मैट्रेस होता क्या है कि सिंपल आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 whatever, और इसको आपने इनक्लोज किया विद अ ब्रैकेट. नाउ दिस विल बिकम अ मैट्रिक्स. इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. किसी भी रियल नंबर को जब हम इनक्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट से, अब इसको बोलेंगे मैट्रिक्स. ये इस वे में भी हो सकता है, या से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, या इसमें मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 6 9 8, फर्दर भी लाइक 7 2 whatever. If it will be enclosed with a bracket, now it will be called matrix. Okay, so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. ऑलराइट जी, अब ऑर्डर क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. किसी भी मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ okay, let's take the example of question number 1 itself. A is 2 minus 5 3 and 6. ओके, अब इस मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में किसी जो हॉरिजॉन्टल इसकी अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसे हम बोलेंगे रोज. ऑलराइट जी. और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, दिस वन, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे कॉलम्स. कॉलम्स. ओके, सो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स will be its rows by column. ठीक है जी. सो यहाँ आपकी रोज कितनी है, 1 रो 2 रो, तो आपकी रोज हैं 2 और आपके कॉलम्स कितने हैं, 1 and 2. 2 आपके कॉलम्स हैं. सो 2 rows by 2 columns, so order will be 2 by 2. Simple. Number of rows, number of columns, just simply count that. That will be the order of a matrix. So question number 1, all parts A, B, C, D up to part H are same. So just practice that, it is simple. I am now moving to question number 2, which is which of the following matrices are equal. Now we will understand what are equal matrices and what are non-equal matrices. Equal. Matrix. Okay. So based on what we consider equality of matrices, if the number of rows, number of columns, and also the real numbers are equivalent to each other, then the two matrices will be equal. For example, suppose A is a matrix with real number 2 5 3 0. Okay, and suppose B is a matrix with real numbers
1 plus 1, 2 plus 1, the 6 minus 1, and 1 minus 1, for example. Then what will be B equivalent to? B will be 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 6 minus 1, 5, 1 minus 1, 0. Means A और B हमारे पास सेम है. इनके रियल नंबर्स 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, 5 is equal to 5, 0 is equal to 0. So A and B will be equal matrices. The number of rows, number of columns, also the real numbers should be equivalent to each other. यानी A का A पार्ट B के A पार्ट के इक्वल होगा, A का B पार्ट B के B पार्ट के इक्वल होगा. दिस इज A, B, C and D. A, B, C, D. So A, small a of capital A is equal to small a of capital B. Similarly, all four real numbers of matrix A are equal to all four real numbers of matrix B. On this basis, we consider A matrix is equal to matrix B. Now, let's see the examples which are mentioned in the exercise, which is about which matrices are equal matrix. Okay, so here matrix A है 3 और matrix B है 3 and 5, matrix C है 5 minus 2, okay, D है 5 and 3, E is 4, 6, 0, 2, F 2, 6. Alright, let's solve this. Remaining you will know what is. Okay, so अब मैट्रिक्स A को देखें, 1 रो 1 कॉलम और रियल नंबर है 3. बाकी मैट्रिसेस में से, गिवन मैट्रिसेस में से अप टू वट एवर इज़ योर लास्ट मैट्रिक्स, आपकी एक्सरसाइज में लास्ट मैट्रिक्स है J, तो वहाँ तक आप देखेंगे. ओके, कौन सा मैट्रिक्स है जिसका जो रियल नंबर है जस्ट 3 है और उसमें एक ही कॉलम और एक ही मैट्रिक्स है. अभी जो हमारे पास हमने यहाँ मेंशन किए हैं, इनमें से मैट्रिक्स C को देखें. दिस विल बी इक्वलेंट टू व्हाट? 5 minus 2 is equal to 3. Means 1 row 1 column and real number is 3. Means A will be equivalent to B. So मैट्रिक्स A इक्वल है C के. ओके जी. देन B मैट्रिक्स में 3 and 5, हमारा कौन सा मैट्रिक्स है जो 3 और 5 बन जाएगा एक्सरसाइज में? ओके, मैट्रिक्स I इज़ 3 and 3 plus 2. This will be equal to 3 plus 2, 5. Means matrix B is equal to matrix I. Similarly, बाकियों को आप चेक करें जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों और उनके रियल नंबर्स आपस में इक्वल हों, वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे. हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD. वैल्यूज़ ऑफ ABCD फाइंड आउट करनी है. और ये क्लेम करता है हमारा क्वेश्चन कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं. मींस A plus C, A plus 2B
C minus 1 4D minus 6 एक मैट्रिक्स है और सेकेंड मैट्रिक्स है 0 3 minus 7 2D। ओके, हमारा क्वेश्चन का क्लेम ये है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, मीन्स ये पार्ट हमारे इस पार्ट के इक्वल होगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू -7, c minus 1 will be equal to 3 and this part will be equal to the d part। यानी हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि a plus c is equal to 0, a plus 2b is equal to -7, c minus 1 is equal to 3 and 4d minus 6 is equal to 2d। Okay, so सबसे पहले we will take up c part because this can be solved। c minus 1 is equal to 3 means अगर हम c को अपनी पोजीशन पे रखें और 3 की भी अपनी पोजीशन है, c minus 1 को हम मूव करेंगे इक्वल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये इक्वल के लेफ़्ट साइड पे है, हम इसको इक्वल साइन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो -1 का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम किसी नंबर को मूव करते हैं इक्वल साइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, चाहे वो लेफ़्ट से राइट मूव हो, राइट से लेफ़्ट मूव हो, तो उसका जो साइन है वो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट। For example, I am saying this is -1 on the left side of this equal sign. I will move this -1 to right side of the equal sign। यहाँ पे ये -1 है, यहाँ जाके ये +1 हो जाएगा। Alright, अब c is equal to what? 3 + 1 4। c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a plus c is equal to 0, a हमें नहीं मालूम, c is now 4 is equal to 0, so a is equal to 0 and 4 will move to other side and it will become -4, a is equal to -4। ऑल राइट जी, अब है हमारे पास a की वैल्यू भी हमें नॉन है और b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। a plus 2b इज़ इक्वल टू -7, a की वैल्यू है -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। -4 को हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑपोजिट साइड में इक्वल के, सो 2b यहीं पे रहेगा और -7 भी अपनी पोजीशन पे। पोजीशन चेंज हो रही है जस्ट -4 की, जो यहाँ जाके +4 हो जाएगा। ऑलराइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4, इट विल बी 3 एंड साइन आएगा हमारे पास जो दोनों में से बड़ी होगी वैल्यू। 7 इज़ दी बिगर वैल्यू और 7 के साथ है माइनस का साइन, इसलिए -3 होगा। ऑलराइट, अब है b की वैल्यू, b इज़ इक्वल टू -3। 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइड पर जब जाएगा तो 2 करेगा डिवाइड, सो b की वैल्यू है जी -2/3। नाउ 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। ओके, यहाँ पे अब हम 4d अपनी पोजीशन पे हम 2d को मूव करते हैं, यहाँ -2d हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ये प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं, मीन्स इसके साथ साइन है प्लस का। ऑलराइट, और 6 को हम मूव करेंगे ऑपोजिट साइड, यहाँ पे -6 है, ऑपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा +6, मीन्स व्हेन वी मार्क नो साइन मीन इट इज़ +6। ऑलराइट, सो 4 - 2d इज़ 2d, साइन आएगा बड़ी रकम का और 6।
ओके, अब 2D इज़ इक्वल टू 6, D इज़ इक्वल टू 6 अपनी पोजीशन, D अपनी पोजीशन, 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइड पे जाके करेगा डिवाइड, 2 1s are 2, 2 3s are 6 means D is equal to 3. Alright, so आपका आंसर क्या है? A is equal to, your A is equal to -4, B is equal to -3/2, C is equal to 4 and D is equal to 3. And here comes the end of exercise 1.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2. टिल देन ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, और कोई भी क्वेश्चन फर्दर हो डू मेंशन इट इन दी कमेंट्स, और फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी इंडिविजुअली. टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.